Alright, the next thing to be learned is linear magnification. Linear magnification. This was also learned in your mirrors. We had learned it. Yes. For linear magnification, it is, what is it called? It is defined as the ratio of size of image to size of object. Size of the image to size of the object. सीखा था पहले भी. Lens के लिए, for a lens, you will tell it. Clear? Then linear magnification, we can also write it in terms of U and V. ठीक है? How is that you are going to write in terms of U and V? We will have to refer the same figure. We will come to this equation. A dash, B dash, AB, CA and CA dash. This I can just reverse it and write A dash, B dash by AB is equal to CA dash by CA. I can just reverse it here. We'll try to do that. So I'll be writing A dash, B dash by AB is equal to CA dash by CA. आप लोगों को करना ये है, keep the figure in front of you and then watch this video. ठीक है, A dash B dash by AB is equal to CA dash by CA. Now apply sign convention to the first step of your derivation. A dash B dash can be written as minus I. ठीक है, A dash B dash can be written as minus I क्योंकि below है इसलिए माइनस है. AB can be written as object O. Then CA dash can be written as V. ठीक है, and CA will be written as minus U. I hope it is clear for you guys. Let me just show it here for those. AB is above object plus O. A dash B dash is below image, will be written as minus I. CA is backwards, so minus U. CA dash is front, going front, so plus V. ठीक है, so same thing we are following. Let us move forward. इसको जब आप substitute करोगे तो what will you get? A dash B dash की जगह पर minus I by वो is equal to CA dash V by minus UI. ठीक है, minus I by O can be also written as magnification. Minus I by O is equal to minus V by URI. ठीक है, so basically M I am getting it as negative for a biconvex lens, although image formed was real, isn't it? तो यहाँ पर एक observation मिल रहा है. Magnification for convex lens. Magnification of convex lens is negative. Yes, and that too for a real image. Magnification of for convex lens is negative for a real image. ये क्यों लिखाया जा रहा है? Why am I writing this is because magnification for mirrors that you had learnt, वहां पर मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव होता था तो हम वर्चुअल बोलते थे. लेंस के लिए मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं रियल. जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाता है तो अब हम बोलेंगे वर्चुअल. ठीक है, सो magnification for convex lens is negative for real image, and similarly you can just repeat the point and tell it is positive for virtual image. Virtual image कैसे होगा वो आप ड्रॉ करके you can just find out by putting the similar triangles again. That is not required. Main thing is these 2 points. ठीक है, these 2 points are to be understood properly. ठीक है, बस इतनी चीज जान लेनी है. ठीक है, mirrors and lens, they work quite opposite. ठीक है, कैसे मिरर में कॉन्केव, यहाँ पे लेंस कॉन्वेक्स हो गया, यहाँ का कॉन्वेक्स यहाँ का कॉन्केव हो गया. यहाँ का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता था तो रियल होता है, यहाँ पर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तब रियल आ रहा है. दोज आर द डिफरेंसेस. ठीक है, और भी एक दो रिलेशन है. दोज आर कैन बी रिमेम्बर्ड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स in terms of U and F, in terms of V and F.
ठीक है। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ एंड वी एंड एफ, मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा, सिर्फ आई विल बी गिविंग यू द डेटा बिकॉज डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यू ओनली नीड टू नो द फॉर्मूला। एफ बाय यू प्लस एफ इज द मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ, in terms of v and f, v in terms of v and f magnification is given as f minus v by f. How do we do it? Use the mirror formula, जैसे हमने किया था मिरर इक्वेशन यूज करके, उसी तरीके से लेंस फॉर्मूला माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल्स वन बाई एफ यूज करें, मल्टीप्लाई बाय u on both sides, rearrange, you will get one equation, multiply by v, rearrange, you will get the second equation. तो ये चीज हमने लास्ट टाइम की थी, सेम चीज रिपीट करना वेस्ट ऑफ टाइम है. जस्ट रिमेंबर द टू फॉर्मुलाज that are shown here. Clear? I hope that finishes. Then let us move on to the next topic. ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डेफिनेशन टाइप है. पावर ऑफ लेंस. ठीक है, व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस? की कोई भी लेंस की ताकत कैसे मालूम की जाती है? बेसिकली उसके फोकल लेंथ के हिसाब से. ठीक है, तो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ मीटर में या mm में आएगा. ठीक है, तो उसी तरीके से पावर विल ऑल्सो शुड बी इन मीटर्स. ठीक है, ये फोकल लेंथ जो है 1 मीटर 2 मीटर, सेंटीमीटर्स को तो सेंटीमीटर में दिखाएगा देगा. तो अगर f मीटर्स में है तो फिर 1/f आएगा. अगर सेंटीमीटर में होता है तो फिर 100/f इन सेंटीमीटर आएगा. क्यों 100 आएगा? सेंटी का 10⁻² हो गया, उसको ऊपर कर देंगे तो 100 हो जाता है, तो इसीलिए. ठीक है, तो कन्वर्जन लिखा है मैंने. बेसिक फॉर्मूला तो यही है, एफ पी इज इक्वल टू 1/f. पी इज इक्वल टू 1/f. दिस मच यू नीड टू नो. अब ये चीज पावर, एसआई यूनिट क्या है पावर की? एसआई यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड डायोप्टर. एसआई यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड डायोप्टर. डायोप्टर का मतलब, डायोप्टर 1/मीटर इज 1/1 मीटर. रेसिप्रोकल ऑफ मीटर इज डायोप्टर. ठीक है, तो पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर. 1d बोलते हैं, कैपिटल डी लिख लेते हैं. पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ फोकल लेंथ इज 1 मीटर. पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ फोकल लेंथ इज 1 मीटर. ठीक है, और ये चीज आप उस फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हो. 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2. कहाँ देखा था इसको? लेंस मेकर्स में. 1/f की जगह हम p लिख सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर अ फ्यू डिटेल्स अबाउट योर पावर ऑफ अ लेंस. और भी एक दो नोट्स हैं. पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स और कॉन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव. यानी जब भी लेंस कॉन्वर्ज करेगा, लेंस की बात कर रहा हूं, पावर of a lens is positive when it is a convexing or a converging lens, and its power is negative if it is diverging lens or concave lens. So that is the thing that you need to know, the basic of power of a lens. आगे भी थोड़े combinations होंगे. All right, the next topic, thin lens in contact. Thin lenses in contact. ठीक है, so this also is something that can be asked. तो इसका क्या है? ये तो पहले एक डायग्राम डाल लेते हैं. ठीक है, most of the time my diagrams do not look good, please bear with me. तो कॉन्टैक्ट में होना इसलिए इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, let us say here is your object, point यूज कर रहे हैं. ठीक है, then when it touches the first one, ठीक है, and after touching the center of the first one it undergoes bending, yes or no? Then it goes to the next one. ठीक है, इसका भी सेंटर होगा, undergoes further bending and इस तरीके से फॉर्म होगा. ये आपका इमेज फॉर्म होगा. अगर ये बेंडिंग नहीं होता है, सेकेंड लेंस को हटा देते हैं, तो it will form somewhere over here, that can be called I1. यानी in the absence of second lens it will be forming at I1. if second lens is present it will be forming at I. ठीक है,
फर्स्ट का फोकल लेंथ f1 रहने दो, सेकंड का फोकल लेंथ f2 रहने दो, वो मार्क करना है, ऊपर लिख के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लेंस इज u, ठीक है। इमेज फर्स्ट लेंस के लिए इज v1, फर्स्ट लेंस से ले रहे हैं। v फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रहा है सेकंड लेंस के लिए यहाँ से, वो v है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। लेंस मेकर के फॉर्मूला की तरह ही है ये। वहां पर एक लेंस को दो टुकड़े में करते थे और उसके बाद सॉल्व करते थे। यहाँ पर एक लेंस को रख के देखते हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फिर दूसरे लेंस को रख के बोलते हैं कि इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। सो कंसिडर टू थिन फोकल lenses of focal length f1 and f2 respectively placed in contact with each other. Let O be the point where the object is placed on the principal axis. If second lens is not present, then the first lens forms an image at I1 and object is at O, ठीक है, and I1 is at a distance of V1, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में यानी सेकंड लेंस को हटा दें तो फिर ये सेकंड बेंडिंग नहीं होगा, पहले बेंडिंग को ही कंटिन्यू करके I1 फॉर्म होगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हम अपना जो फॉर्मूला हमने फॉलो किया था, इफ यू हैव टू अप्लाई दैट फॉर्मूला वी विल बी राइटिंग -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। आई एम नॉट राइटिंग द डेटा, रिटन पार्ट इट्स देयर इन टेक्स्ट बुक, यू कैन रेफर। तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। अब उसमें से u एज इट इज है, ठीक है। v की जगह पर ये नहीं है, v हमारा इमेज यहाँ पर है तो v1 लिखना है, ठीक है। और फोकल लेंथ फर्स्ट लेंस की बात कर रहे हैं, सेकंड लेंथ एब्सेंट है तो f1 हो जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। कमिंग टू इफ सेकंड लेंस इज प्रेजेंट, व्हेन सेकंड लेंस इज प्रेजेंट तब क्या होगा, ठीक है। सेकंड लेंस प्रेजेंट होगा तो ऑब्जेक्ट सेकंड लेंस के लिए दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए आई कैन से I1 acts as virtual object, I1 acts as virtual object, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, ठीक है। एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट I at a distance V, therefore -1/u + 1/v equals 1/f। फॉर्मूला अब क्या होगा, u जाकर क्या बनेगा, v1 बनेगा, u जाकर v1 बनेगा, क्योंकि अभी हमारा ऑब्जेक्ट ये है, I1 इज द ऑब्जेक्ट, सो 1/v1 -1/v1, ठीक है, + 1/v, v विल बी एज इट इज क्योंकि इमेज v है। फोकल लेंथ सेकंड लेंस की बात कर रहे हैं तो f2 हो जाएगा। सो दिस आई होप इट इज क्लियर, इज योर सेकंड इक्वेशन। लेट मी रिपीट द टू इक्वेशंस वंस अगेन। पहला इक्वेशन में सेकंड लेंस एब्सेंट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज I1 है। तो थिन लेंस फॉर्मूला जब डालोगे -1/u + 1/v = 1/f, u एज इट इज, इमेज v1 पे हो रहा है तो v1, फोकल लेंथ फर्स्ट लेंस की बात कर रहे हैं, सेकंड लेंस एब्सेंट है यहाँ पे तो f1। सेकंड लेंस को इंक्लूड किया गया, तब ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, ये रे ऐसे जा रही है ना, ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा है तो ऑब्जेक्ट को हम I1 कंसिडर करेंगे। I1 क्योंकि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे उसे, क्योंकि डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो अब जब इमेज I पे फॉर्म होगा, ठीक है, तो तब फिर वापस वही इक्वेशन लिखोगे u की जगह पर। अब u कहाँ है, u यहाँ नहीं है, सेकंड लेंस की बात हो रही है तो I1 का डिस्टेंस u है तो v1 विल राइट, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट I दैट इज एट अ डिस्टेंस v, सो v लिखा है, डिस्टेंस है सेकंड सेट ऑफ डिस्टेंसेस। नेक्स्ट फोकल लेंथ सेकंड लेंस की बात हो रही है तो f2 लिखेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। एक और कंफ्यूजन भी आता है स्टूडेंट्स में, सर ये कभी कभी u यहाँ से मेजर कर रहे हो, v1 भी यहाँ से, v यहाँ से, ऐसा क्यों? असल में बात यह है कि इट इज थिन लेंस, एंड आपके टेक्स्ट बुक में जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा द लेंसेज आर नॉट सो बिग दैट आई हैव ड्रॉन, दे आर एक्चुअली रियली स्मॉल। थिन लेंसेज हैं, बहुत ही नजदीक हैं एक दूसरे से, तो ये बहुत ही कम सेंटीमीटर्स का फर्क होता है। सो यू कैन मेजर इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू ऑल्सो, डजेंट मैटर। सो फिगर में आपको क्योंकि कैमरा में दिखना है ना, उसलिए थोड़ा big I have drawn. So these are the two. When I add these two, equation 1 plus equation 2, क्या हो जाएगा? 1/v1 and -1/v1 will get cancelled. You will get -1/u plus 1/v is equal to 1/f1 plus 1/f2.
माइनस 1/u प्लस 1/v इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अब माइनस 1/u प्लस 1/v, ये दो नए चीजें हैं u और v। ठीक है, अब इन दो लेंसेज को अगर मैं एक ऐसे लेंस से रिप्लेस करूं, समझो कि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे रखा है, इमेज 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रहा है इन दोनों की वजह से। अब इन दोनों लेंस को हटाकर एक ऐसा लेंस ला के रखूं, इफ आई ब्रिंग वन लेंस इन सच अ वे दैट इट गिव्स द सेम इफेक्ट एज इन दीज टू lenses, then I can say object is at 5 centimeter, image is again formed at 10 centimeter for a new lens, third lens, which is equivalent to the two lenses in contact. इन दोनों के बजाय एक बड़ा वाला लेंस ला के रख रहा हूँ। सो इन दैट वे इफ आई कंसिडर देन वन, उस बड़े लेंस की जो नया कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को हटाकर जो लेंस लाया हूँ, उस लेंस का फोकल लेंथ आई कैन राइट इट एज 1/f। ठीक है, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, so this is how you get the formula. The two thin lenses in contact behave as a single lens of focal length capital F. The single lens is known as equivalent lens and its focal length capital F is called equivalent focal length. अब ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज होगा क्योंकि चैप्टर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज 2-3 मरतबा की जाती है, 2-4 मरतबा की जाती है, क्योंकि वो चैप्टर हुआ नहीं है। इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट बट स्टिल आई मेक इट इजियर। ये बस ऐसा है कि समझो एक बल्ब है आपके पास, ठीक है, ओके, ट्री बना दिया, ये बल्ब है आपके पास। ठीक है, ये बल्ब जो है आपने 2 सेल लगाए, ठीक है, 2 सेल लगा करके आपने चालू किया बल्ब को। ठीक है, बल्ब ने समझो बल्ब स्टार्टेड लाइटिंग, इट गिव आउट लाइट। ठीक है, डन। ये 2 सेल्स हैं, सेल का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, बैटरी समझ लो नहीं तो, डन। इन 2 सेल्स का वैल्यू है 1 वोल्ट एंड 1 वोल्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर मैं ये 2 सेल्स को हटा करके एक सेल लगाता हूं मोटा वाला, ठीक है, टू द सेम बैटरी, टू द सेम बल्ब ऑफ 2 वोल्ट्स लगाता हूं, तो क्या विल दिस वन गिव द सेम अमाउंट ऑफ लाइट और नॉट? ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पर 2 बैटरीज थे 1 वोल्ट के, 1 वोल्ट थे। इंस्टेड ऑफ दोस 2 आई एम पुटिंग अ न्यू सेल विच इज इक्विवेलेंट टू दोस 2। इसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेल ऑफ दिस 2। सिमिलरली इन दोनों को रिप्लेस करके मैं एक लेंस लेके आऊं जिसका फोकल लेंथ कैपिटल एफ हो और जो सेम इफेक्ट दे जो ये 2 लेंसेज दोनों मिल के दे रहे हैं, तो I can call this lens to be called as equivalent lens of these two, and I can call this focal length to be called as equivalent focal length of the 2 lenses in contact. तो उस तरीके से आपको 1/u plus 1/v equals 1/f capital F मिल रहा है। So this is your relation for thin lenses in contact. I hope this thing is clear. अगर बहुत सारे lenses होंगे तो 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 and it goes on. ठीक है, देन पावर। अब इसी चीज को पावर क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, इक्विवेलेंट पावर विल बी P1 प्लस P2 समेशन ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। बहुत सारे लेंसेस होंगे तो पावर इज P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन। आई होप दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड। ठीक है, अब इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। 1/f इज नथिंग बट P। ठीक है, 1/f1 इज P1, 1/f2 इज P2, 1/f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लेंगे तो कैपिटल P आएगा, पावर ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। 1/p जो है वो इसका है, P1 P2 इन दोनों के है, तो उस तरीके से होगा। ठीक है, और मैग्निफिकेशन कैसे होता है जब आप लोग लेंसेस को कनेक्शन में रखते हो, तो मैग्निफिकेशन एक्चुअली M1 इंटू M2 होता है, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होते जाता है। ठीक है, अगर बहुत सारे लेंसेस हों तो M1 इंटू M2 इंटू M3 एंड सो ऑन, मल्टीप्लीकेशन होते जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, डन, क्लियर विद दिस। एक और पॉइंट है आपके बुक में, आई जस्ट रीड इट आउट इन योर दिनेश व्हेन यू लुक एट द नोट just before this particular topic ends. When 2 thin lenses of equal and opposite focal lengths, that is one convex and the other concave, are placed in contact, then the equivalent focal length is given by, यानी 2 thin lenses ले लें of equal and opposite focal length के, यानी एक convex और दूसरा concave, यानी
F1 is now 1 by F1 is F, F2 is minus F. तब हम पावर चेक करेंगे तो 1 by कैपिटल F इक्वल्स 1 by F1 प्लस 1 by F2. F1 क्या है F, F2 क्या है माइनस F. 1 by F माइनस 1 by F दोनों कैंसिल होकर 1 by F इक्वल्स 0 हो जाएगा. ठीक है, यानी पावर क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल 1 by 0 इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है, तो सॉरी फोकल लेंथ जो है रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा. पावर क्या होगा उसका 0 हो जाएगा. ठीक है, सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिहेव्स एज अ प्लेन ग्लास प्लेट, यानी एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे, उनको जोड़ देंगे तो वो प्लेन ग्लास की तरह काम करेंगे. दैट इज व्हाट ही मीन्स. अंदर द फॉर्मूला इज गिवन. अगर ये दोनों लेंसेस, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस पे रख लिया, समझो x डिस्टेंस पे रख लिया, तो फिर एक नया फॉर्मूला है 1 by कैपिटल F इक्वल्स 1 by F1 प्लस 1 by F2 माइनस x by F1 F2. ठीक है, ये फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव के लिए है. ठीक है, पावर ये हिसाब से क्या होगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस x P1 P2 वेर x इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस. ये आपके पीयू सिलेबस का हिस्सा नहीं है. पीयू सिलेबस का हिस्सा यहाँ तक है और ये वाला फॉर्मूला तक है. क्लियर? सो टिल हियर व्हाट एंड ऑल हैव यू लर्नड, दैट इज व्हाट वी नीड टू थिंक नाउ. कई सारे फॉर्मूलाज वी केम टू अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम रिफ्रैक्शन. इफ आई स्टार्ट काउंटिंग the formula you learnt, n equals sin I by sin R or n2 by n1, that was from Snell's law. Then you learnt lateral shift, d is equal to t sin I minus R by cos R. Then n equals real depth by apparent depth. Normal shift you learnt. Then n is equal to 1 by sin C. ठीक है, critical angle का concept. Then UV-NR relation पे आपने दो केसेस सीखे थे. When object is in rarer medium you had minus n1 by u plus n2 by v equals n2 minus n1 by R. When object lies in denser medium, you had learned minus n2 by u plus n1 by v equals n1 minus n2 by r. I'm telling this fast because it is there in your book. You just have to look at the PDF at once. Make a note of all these formulas at one place because आगे चल के हम problems भी करने वाले हैं. ठीक है. Then lens maker's formula 1 by f is equal to n minus 1 times 1 by r1 minus 1 by r2. Then we learnt mirror equation 1 by f equals 1 by u plus 1 by v. Lens equation 1 by f equals minus 1 by u plus 1 by v. Power of a lens was given by P equals 1 by f. Then magnification is given by size of image by size of object. Then the relations of them. So and last the focal length वाले combination के formulas and power के combination वाले formulas. These are the things that we have covered till now. Next topic we need to cover with प्रिज्म एंड एंगल ऑफ प्रिज्म का एक डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ वी फिनिश दैट मेजर पार्ट ऑफ योर चैप्टर इज डन. देन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आर देयर. आई थिंक कभी भी उनका वेटेज हमेशा कम रहा है. सो वील स्टॉप विद एंगल ऑफ प्रिज्म एंड इट्स डेरिवेशन, देन मूव ऑन टू प्रॉब्लम्स. ठीक है, एंड व्हेन टाइम परमिट्स, यानी जब रेगुलर कॉलेज शुरू हो जाएगा एंड सिलेबस तय हो जाएगा, उसके बाद माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वगैरह हम टच करेंगे. बिकॉज माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप ऑल यू नीड टू डू इज लर्न द रे डायग्राम एंड लर्न द फॉर्मूला. दैट्स ऑल इज देयर. 2 और 3 मार्क्स का वेटेज होता है उसका. दैट वी कैन डू एनी टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑल्सो. सो दिस मच वी हैव डन टिल हियर. योर पार्ट ऑफ द ड्यूटी, प्रैक्टिस एवरी सिंगल डेरिवेशन दैट इज डन टिल नाउ. एक आखिरी डेरिवेशन बाकी है, वो भी मैं करवा दूंगा. ठीक है, सो प्रैक्टिस ऑल द डेरिवेशंस कंप्लीटली. राइट एंड कीप द असाइनमेंट रेडी विथ यू. यस, जैसे जैसे आगे चल के वक्त बनेगा या फिर मिलना मुनासिब होगा, इफ इट इज परमिसेबल टू मीट देन वील ट्राई टू मीट. इफ नॉट, if regular colleges starts once again, that time we can again check the assignment and everything. But make sure you'll not waste this thing. अब इतना जितना मैंने यहाँ पर हमने लिया है from this particular concepts, you can also start working on the competitive part for your ray optics. It is really simple. जब problems करवाऊंगा तो और भी आसानी हो जाएगी. But the most important part for this is you need to practice. Without practicing, it is not going to happen. These things you will always get confused because each and every single derivation, they are all related. They all look like the same. हर derivation में हम sin convention डाल रहे हैं, हर derivation में हम लोग similar triangle से खेल रहे हैं. So these things are there that are common. So I hope you guys understand this and take it seriously. We'll stop at this. Thank you.